Hello students, welcome to my channel. In last video we were discussing the reproduction in bryophytes. So as you have known that a bryophyte means a plant body having no differentiation at all, whether it is having stem, where is the leaves and where are the roots. We were just saying stem like structures, root like structures and leaf like structures, not the exact stem, exact root and exact leaves, right? So in sexual reproduction what happens? So this you can see is a bryophyte plant. It's a body of bryophyte plant, and you can see here this plant, see here. So these are what? These structures, you can see this like this. These are the root like structures, but not the exactly roots, but it will evolve to form root, correct? Now see what are the asexual reproductions. किसी बॉडी से, एक प्लांट बॉडी से दूसरी प्लांट बॉडी निकल आए तो क्या बोल दिया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत इजी है. तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये वाले, दीज आर कॉल्ड जेमा एंड इट विल बी फॉर्म्ड जेमा कप्स. लेट्स स्टार्ट विद द also occurs when gemmae are formed. They are green, multicellular, asexual buds that separate from the parent and develop into new individuals. Note the point. Gemma are the structures, these are kind of buds, they separate from the parent plant body and they make a new plant body. So what it is? It is asexual reproduction through gemmae. They develop in small receptacles called gemma cups located on the thallus. Note the point. In the case of sexual reproduction, the male and female sex organs are produced either on the same or on different thallus. Mosses are another type of bryophytes. Funaria, Polytrichum, and Sphagnum are some. Here the examples are very important. In case of mosses, example of bryophyte. Bryophytes are of two types, liverworts and mosses. Mosses के example क्या दिख रहे हैं आप सामने? Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Now note the points. Common species of moss. A moss undergoes several stages in life, wherein the gametophyte stage is the most predominant one. The gametophyte stage has two substages, Protonema and Leafy Stage. Note it, it's very important for your exams and your competitive exams. Moss gametophytic stage. क्या बोल रहे हैं? Gametophyte stage, right? Protonema stage, Leafy stage. एक स्टेज आती है जिसको बोलते हैं Protonema, ये भी स्टेज है. ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स के लिए पूछे आएंगे. बहुत अच्छे से देखेंगे अपनी बुक में. In the Protonema stage, the spore develops into a protonema, a thread-like chain of cells. Note the point. This red colored spore, this is the spore, Protonema stage. This is spore, it is spore. From this spore there is a kind of protonema. These are the protonema. This is protonema. So that is why it is called Protonema stage. The protonema is creeping, green, branched, and filamentous. Note it. The second stage is the leafy stage, where the primary protonema develops into the secondary protonema as a lateral bud. The buds consist of upright, slender axes that bear spirally arranged leaves attached to the soil through branched rhizoids. Rhizoids. जब भी टर्म आए rhizoids, ये क्या बोलते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. क्या बोलेंगे? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट द एग्जैक्टली रूट्स. याद रखेंगे ब्रायोफाइट्स में डिफाइंड बॉडी नहीं है अभी. राइजॉइड्स क्या लिया? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स. The sexual organs develop during the leafy stage. Mosses reproduce vegetatively and sexually. Vegetative reproduction is by fragmentation and budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the male and female sex organs are produced at the apex of the leafy shoots. Note it. ये आपको पूरा बनाना है पूरा चार्ट.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ब्रायोफाइट्स में कैसे होगा मोसिस में? देखो ये राइजोइड्स दिख रहे हैं, मेल प्लांट अलग दिख रहा है आपको, राइट, ये मेल वाला है इधर, ये फीमेल वाला है। अब आप देखो यहाँ पे ये नॉन वैस्कुलर स्टेम, नॉन वैस्कुलर क्यों? जहाँ बोलते हैं टर्म नॉन वैस्कुलर, वेसल्स मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। अभी मैंने पहले ही कहा था ब्रायोफाइट्स में एग्जैक्टली स्टेम नहीं बना, राइट, नॉन वैस्कुलर स्टेम बोला है, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम है ही नहीं, करेक्ट। जहाँ जाइलम और फ्लोएम आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो आगे चल के आएंगे, आपको मिलेंगे टेरिडोफाइट्स में। कहाँ? टेरिडोफाइट्स में भी सही से नहीं मिलते, आगे कहाँ मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, याद रखेंगे। बहुत अभी एवोल्यूशन चल रहा है, हमने एल्गी से शुरुआत की, फ्रॉम एल्गी वी आर गोइंग टूवर्ड्स एंजियोस्पर्म, द मॉडर्न प्लांट्स। तो नॉन वैस्कुलर लीव्स हैं, नॉन वैस्कुलर स्टेम्स हैं, राइजोइड्स हैं, करेक्ट। तो मेल और फीमेल दो अलग अलग प्लांट हो गए, और इन प्लांट से क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जहाँ पर मेल और फीमेल टर्म आ जाए यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। Let's now look at the uses and importance of bryophytes. Moss such as sphagnum provides peat, which is used as fuel. Noted. Moss also form a dense mat, thereby allowing rainwater to percolate into the ground. Noted. This prevents rainwater from running off and the subsequent soil erosion. बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीट का इस्तेमाल होता है, पीट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इवन ये एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है कि जो पीट होते हैं, जो ब्रायोफाइट से प्रोड्यूस होते हैं, इनका मेन पर्पस क्या है। ये जब भी ग्राउंड में होते हैं, ये ग्राउंड में सेटल हो जाते हैं, और जब भी बारिश होती है तो क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो नीचे धीमे धीमे हमारे ग्राउंड की सरफेस पे चला जाएगा। अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रन ऑफ हो जाएगा। तो रन ऑफ वाटर को बचाने के लिए, समझ गए ना, ताकि पानी रन ऑफ ना हो, रन ऑफ होगा तो समंदर में जाएगा, हमें ग्राउंड वाटर चाहिए। तो ग्राउंड वाटर में पानी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पीट्स का इस्तेमाल लोग करते हैं, डाल देते हैं ज़मीन में। फिर देखें, Bryophytes such as moss are also ecologically important as, along with lichens, they are always the first to colonize rocks. नोट इट। Moreover, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है ना, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स। वाई इट इज टर्म एज कोलोनाइज रॉक्स? रॉक्स मीन्स जब अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था तो हमारे सब ज़मीन में क्या था? अर्थ वॉज ओनली अ रॉक पार्टिकल। क्या कह सकते हैं आप? पूरे यूनिवर्स का एक रॉकी, ये सब जो प्लैनेट होते क्या होते हैं? रॉकी पार्टिकल्स होते हैं यूनिवर्स के अगर टर्म में देखा जाए, सही है ना। तो ये क्या है? एक रॉक हमारा अर्थ है, रॉक सब चट्टानी थी। तो चट्टान के ऊपर ये जो देखो पूरी ग्रास, ग्रीन लैंड बन गया है, ये क्या बन गया? जो ग्रासेस डेवलप हुई है वो है क्या? ये किसकी वजह से है? इन्हीं ब्रायोफाइट्स और लाइकेन की वजह से। तो लाइकेन्स को बेसिकली कहा जाता है द फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ द रॉक्स। रॉक मतलब चट्टानों में जो सबसे पहली बार डेवलपमेंट हुआ था, किसका? इन्हीं सब ऑर्गेनिजम्स का। तो कौन कहलाए? वो लाइकेन्स कहलाए थे, जो हरे आपको दिखाई पड़ते हैं। they decompose the rocks रॉक्स को and make the area suitable for the growth of higher plants. पहले लाइकेन्स आए, लाइकेन्स ने क्या किया? रॉक्स को डिकम्पोज किया। जैसे डिकम्पोज हो गए तो क्या बन गए? जैसे जब रॉक्स गली, समझो बात को, रॉक से क्या बनाए? लाइकेन्स ने, ये देखो ये रॉक हैं, रॉक्स में किसका एक्शन हुआ? लाइकेन्स का। और लाइकेन्स क्या हैं? आप अच्छी तरह से पता है लाइकेन्स क्या होते हैं, ठीक है। एसोसिएशन होता है किसका? एल्गी और फंगस का, पढ़ा है आपने। तो ध्यान से देखेंगे लाइकेन्स क्या हैं। ये देखो लाइकेन्स क्या कहलाते हैं? एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है। चट्टानों उन्होंने क्या किया? घोल दिया। दे डिजोल्व द रॉक्स। जब डिजोल्यूशन हुआ तो क्या बन गई? सॉइल बना। क्या बना? सॉइल बना। जो भी मिट्टी आप देख रहे हैं पहले क्या था? पहले तो रॉक ही था ना। तो लाइकेन्स ने क्या बनाया? लाइकेन्स ने चट्टानों से क्या बनाई? सॉइल बनाई। और जब सॉइल बन गई, अब सॉइल में क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं? जब सॉइल बन गया तो सब मिनरलाइजेशन हो गया, मिनरलाइजेशन ज़मीन में आ गया। तो क्या होगा? यहीं पर जब सॉइल बन गई तो बड़े बड़े प्लांट यहीं से उगना शुरू हो गए। ये आपको दिख रहा है आपको फिगर में। तो पहले क्या बना? यही सब बने, चट्टानों को कोलोनाइजेशन। Thus we have seen that bryophytes have several uses. You have probably seen ferns growing in gardens or in someone's backyard. फर्न्स, ब्रायोफाइट। Ferns are a type of pteridophyte. की बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे टेरिडोफाइट्स में। फर्न्स आ गए,
Pteridophytes are plants that flourish in a damp, cool and shady habitat, although some species also grow in sandy soil conditions. ज़्यादातर जो फर्न्स यानी टेरिडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स से और एडवांस हो गए, टेरिडोफाइट्स आ गए। टेरिडोफाइट्स आपने देखा होगा, जो भी माउंटेन क्लाइंबिंग कर चुके हैं या फिर माउंटेन एरिया में जा चुके हैं, जो भी पहाड़ों में जा चुके हैं, उन्होंने देखा होगा ऐसे टाइप के आपको लीव्स दिखाई पड़ते होंगे पौधों के। ये सब क्या हैं? फर्न्स हैं। और फर्न्स किस कैटेगरी में आते हैं? ये टेरिडोफाइट्स की कैटेगरी, यू कैन सी हियर। तो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये, राइट। तो ये क्या होते हैं? बहुत अच्छी कॉलोनी होती है इनको। आप देखोगे पहाड़ों के पहाड़ में पूरे ग्रीन ग्रीन जो दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे बेसिकली यही सब हैं, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। अच्छे से देखेंगे इसे। Occupy a special place in plant evolution as they were the first terrestrial plants to possess vascular tissues. यस, ब्रायोफाइट में अभी हमने क्या बताया था? ब्रायोफाइट्स में प्रॉपरली वैस्कुलर सिस्टम नहीं आया था। वैस्कुलर मीन्स जाइलम और फ्लोएम डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हम टेरिडोफाइट्स में आ गए, टेरिडोफाइट्स में देखो धीमे धीमे पूरा ये वेसल सिस्टम आ गया था, यानी कि ये एक प्रॉपर स्टेम बनने के साथ साथ यहाँ पर बीच में जाइलम और फ्लोएम की लेयर्स भी आ गई थी, ताकि सॉइल से जितना भी वाटर जाएगा, किसके थ्रू जाएगा भाई? सॉइल से क्या जाना होता है? वाटर जाना होता है। तो सॉइल से वाटर जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? जाइलम के थ्रू जाएगा। और जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी, उसका फूड कहाँ आएगा? वापस आएगा, रूट तक जाता है। फूड रूट तक जाता है पत्तियों बनने के बाद। क्यों? एनर्जी भी तो चाहिए सबको। आगे देखें, स्टोरेज होता है। And true root, stem and leaves. True stem, root and leaves. The leaves of a pteridophyte are large as in ferns or small as in the case of Selaginella. Pteridophytes are widely used as ornamental plants, soil binders, and for medicinal purposes. Based on the organization of the plant body, including the nature of the leaf and location of sporangia. देखो, टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स दिए गए। टेरिडोफाइट्स को कैटेगराइज किया, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू व्हाट? ब्रायोफाइट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। Likewise, just like pteridophytes, bryophytes were categorized. And what are pteridophytes? Coelopsida. P is silent here. Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. तो इनके क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद रखेंगे, और याद रखेंगे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है इनके एग्जाम्पल्स। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। व्हाट? सीलोप्सिडा, टेरिडोफाइट की कैटेगरी सीलोप्सिडा, दूसरी कैटेगरी स्फिनोप्सिडा, राइट, और बाद में टेरिडोप्सिडा या टेरोप्सिडा बोल सकते हैं इसको, टेरोप्सिडा। याद रखेंगे इनके एग्जाम्पल्स जो हम देंगे यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सबके। They are classified as Coelopsida, P silent, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. यहाँ P silent है, टेरोप्सिडा। The life cycle of a pteridophyte begins when the plant body, a sporophyte, bears sporangia. देखें, ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी थी वो क्या थी? ब्रायोफाइट के लिए में क्या था? गैमेटोफाइट आपने बोला था, प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था। टेरिडोफाइट में हमने क्या बोला? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइटिक। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी थी, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। अब देखो यहाँ से, which are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. Sporophylls. These sporophylls can be seen on the back side of the leaves. आप कोई भी फर्न देखोगे, ऐसे जो भी आपको ग्रीन लीव्स दिखाई पड़ रहे थे, उनके बैक साइड में आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? ये फर्न्स दिखाई पड़ेंगे। ये सब क्या You है? must have often seen Right? a slimy तो वो सब क्या थे? green layer वो on जितने भी आपको फर्न्स में दिखाई पड़ेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? वही हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी दिखाते हैं फर्न्स के लिए। याद रखें इन पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पोरोफिटिक बॉडी टेरिडोफाइट्स में, और कौन सी बॉडी? स्पोरोफिटिक। कहाँ पर? they are classified टेरिडोफाइट्स में, as और गैमेटोफिटिक Coelopsida, बॉडी ब्रायोफाइट्स। Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida.
The life cycle of a pteridophyte begins when the plant body, ये लाइफ साइकिल आपने देखा, राइट? देखो कैसे. a sporophyte, bears sporangia, स्पोरेंजिया. which are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. स्पोरोफिल्स, you can see. However, in some genera like Equisetum, Equisetum. sporophylls might form distinct and compact structures called strobili or Strobilus. cones. Note it. The sporangia produce spores in spore mother cells by meiosis, which germinate into gametophytes called prothallus, a small, multicellular, free-living and mainly photosynthetic gametophyte which grows only in cool, damp and shady places. The prothallus also bears the male and female sex organs, the antheridium and archegonium.